You know, God is building His church. आपको पता है परमेश्वर अपनी कलीसिया को बढ़ाता है। And Bible says, Jesus declared, I will build my church and the gates of Hades will not prevail against. और बाइबल इस बात को बताती है कि यीशु ने कहा कि मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा और अधोलोक के द्वार उस पर प्रबल ना होंगे। I have a question. Have you ever experienced embarrassment? तो मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपने कभी अपने आप को शर्मिंदा महसूस किया है? I ask this kind of question when we gather around fellowship. If you have come to my house, I've always asked, do you recollect any experiences of being utterly embarrassed? और मैं कई बारी शायद अपने घर में जब हम इकट्ठा होते हैं तब ऐसे सवाल पूछता हूँ कि क्या आपको कोई ऐसा अनुभव अपना याद आ रहा है जब आपको बहुत बेइज्जती महसूस हुई हो? Can you think of one of that experience? क्या आप ऐसा कोई अनुभव याद कर सकते हैं अपना? Yes? हाँ, You can think of? हाँ, आप सोच पा I रहे हैं। hope all of you have been embarrassed at some point. और मैं आशा करता हूँ आप सब कहीं ना कहीं बेइज्जत तो हुए होंगे। And some of those stories maybe you can tell publicly, some of them you can't tell even publicly. और कई आप शायद समाज के बीच में कह पाएंगे और शायद कई ऐसी कहानियां जो आप बता भी नहीं सकते हैं। I always said my one which happened in Dubai. और मैं हमेशा अपनी कहानी बताता हूँ जो दुबई में हुआ था। You know, Priya been to Dubai. In fact, she been to our church, the church that actually sent us from Dubai to India. और प्रिया दुबई गई हैं, वो उस कलीसिया में भी गई हैं जिस कलीसिया ने हमें दुबई से इंडिया भेजा था। All our beloved families there, pastors, Priya met them, right? और हमारे सारे पासवान परिवारों से वहाँ पर प्रिया मुलाकात की In उन्होंने। fact, if you remember Deepak, when he went to that church in Dubai and he said, I come from Dehradun. और दीपक जब वह उस कलीसिया में गए दुबई में, तो वो कहते मैं देहरादून से And आया then हूँ। he said, I go to Pastor Pankaj's church. और उन्होंने कहा कि मैं पास्टर पंकज की And the कलीसिया में family जाता there, हूँ। they all love me and Tressa. They were the ones so influential in our lives. और वहाँ पे जितने भी परिवार हैं वह सब So- ट्रेसा और मुझे प्रेम करते हैं और वह उन्होंने हमारे जीवन में बहुत You प्रभाव डाला है। you can ask about that church to Priya. What was her experience? आप उस कलीसिया के बारे में प्रिया से पूछ सकते हैं कि A कैसा उसका beautiful अनुभव रहा। family, a loving church, very missional. और एक बहुत सुंदर So, परिवार। in Dubai, what happened? I went with my friend to this showroom of laptop. There are huge showrooms. You go there, and my friend was busy looking for a laptop. और दुबई में मैं अपने एक दोस्त के साथ एक लैपटॉप के शोरूम में गया। वहाँ पर बड़े बड़े शोरूम्स थे लैपटॉप के और वो मेरा दोस्त जो है अपने लैपटॉप देखने में व्यस्त था। And as he was looking at laptop, I decided to just walk out of the shop. और जब वो लैपटॉप में लैपटॉप्स देख रहा था, मैंने ये बात ठानी कि अब मैं क्या करता हूँ, बाहर चलने लग जाता And हूँ। as I walked, I hit myself so hard in front of me, this huge glass that I didn't even see. I thought it's just, you just walk out. और जैसे मैं बाहर जा रहा था, मैं टकराया एक शीशे पे, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि वहां पर कुछ है ही नहीं, आप बस सीधा चले जाओ It वहां was से। a huge noise. और एक बहुत बड़ा शोर And हुआ वहां पे। everyone looked at me. और सब ने मुझे And देखा I was so embarrassed. और मैं बहुत शर्मिंदित I हुआ। said, what happened? और मैंने सोचा क्या हुआ है? How didn't I see this? मैंने ये कैसे नहीं देखा? Do you remember your embarrassment experience? क्या आपको अपना ऐसा कोई किस्सा याद आ रहा है? Embarrassment is just a degree of an emotion called shame. Shame is the highest degree. और एम्बैरेसमेंट यानी शर्मिंदा होना सिर्फ एक छोटा सा पड़ाव है एक बड़े भावना का जिसका नाम है शर्म। Shame is an emotion that we don't want to even talk about. और जो ये शर्म है, ये एक ऐसी भावना है जिसके बारे में हम शायद बात भी ना करना चाहें। We were all ashamed of certain things. और हम सब कई बातों के लिए बहुत शर्मनाक हैं। We did certain things that we don't even want to think about. और हमने कुछ ऐसी चीजें करी जिसके बारे में हम सोचना भी नहीं चाहते। This morning, we will read scripture and we will probably see scripture. और आज की सुबह हम वचन को पढ़ेंगे और वचन को देखेंगे भी। It's good to imagine the scripture, how it must have taken place. और यह बहुत अच्छा होता है कि हम उसको सोचें कि कैसे उसने कार्य किया होगा उस समय में। We will look at this video and understand John chapter 8, 1 to 11. You can open your Bibles, John chapter 8, 1 to 11. Though we will see this video, there are certain things that video doesn't capture. और हम देखेंगे यूहन्ना
उसका 8 उसका 1 से 11 तक। और हम एक वीडियो देखने वाले हैं, परंतु हाँ हम वीडियो देखेंगे पर हम वचन को भी पढ़ेंगे, क्योंकि उस वीडियो में उन सब बातों की पुष्टि नहीं हुई है। It's in English, but I'm sure you'll be able to understand. और ये अंग्रेजी में है, परंतु मैं आशा रखता हूँ कि आप सब इसको समझ पाएंगे। Ye have heard that it hath been said, an eye for an eye, and a tooth for a tooth. But I say unto you that ye resist not evil. For whosoever shall smite thee on thy right cheek, Master, this woman was taken in adultery, in the very act. Now Moses, in the law, commanded us that such should be stoned. But what sayest thou? What sayest thou? he that is without sin among you, let him first cast a stone at her. Woman, where are those thine accusers? Hath no man condemned thee? Amen, Lord. Neither do I condemn thee. Go and sin no more. I hope you followed the story. मैं आशा करता हूँ आप इस कहानी को आपने Sometimes सुना हो। it's really good to imagine the scripture, how it must have happened. और कई बारी बहुत अच्छा होता है कि हम उस बात को सोचें कि कैसे यह घटना घटी होगी। In John chapter 8, verse 1 to 11, this story is recorded. और यूहन्ना उसका 8:1 से 11 में इस दृष्टांत को लिखा गया है। Let's first read it verse by verse. आए हम इसे आयत दर आयत पढ़ते हैं। Verse 1, but Jesus went to the Mount of Olives. परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। Early in the morning, he came again to the temple. All the people came to him, and he sat down and taught them. और भोर को फिर मंदिर में आया और सब लोग उसके पास आए और वहां बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। In the video, we saw he was teaching his disciples. और जो हमने वीडियो देखी उसमें भी हम देख पा रहे थे कि वो अपने चेलों को वहां पर सिखा रहा था। Verse 3, the scribes and the Pharisees
brought a woman who had been caught in adultery, and placing her in the midst, they said to him, Teacher, this woman has caught in the act of adultery. और 3 और 4 आयत इस बात को कहती है, तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खड़ी करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते हुई पकड़ी गई है। Now in the law of Moses commanded us to stone such women. So what do you say? और व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों को पथराव करे। सो तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? Verse 6, this they said to test him, that they might have some charge to bring against him. Jesus bent down and wrote with his finger on the ground. उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाएं, परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। Verse 7, and as they continued to ask him, he stood up and said to them, let him who is without sin among you be the first to throw a stone at her. And once more he bent down and continued writing on the ground. जब वे उससे पूछते रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा कि तुम में से जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे, और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। That's something that video did not recorded. और यह एक बात है जो इस वीडियो में नहीं दर्शाई गई। Jesus bent down second time to write on the earth. कि यीशु दूसरी बार झुककर भूमि पर लिखने लगा। Verse 9, but when they heard it, they went away one by one, beginning with the older ones, and Jesus was left alone with the woman standing before him. और परंतु वे सुनकर बड़ों से लेकर छोटे तक एक एक करके निकल गए, और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। Verse 10, Jesus stood up and said to her, Woman, where are they? Has no one condemned you? यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? Verse 11, she said, No one, Lord. And Jesus said, Neither do I condemn you. Go and sin no more. उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना। May the word of God in our hearing and in our reading bring much fruit to our lives. और परमेश्वर का वचन के पढ़े जाने और सुने जाने से आशीष हो। I don't know about you, if you capture what was happening to this woman. मैं नहीं जानता कि अगर आप उस बात को पकड़ पाए कि क्या यहाँ पर इस स्त्री के साथ हो रहा था। Utterly ashamed. She is publicly humiliated, put to shame. और वह समाज के बीच में उसको बेइज्जत किया जा रहा था और उसे शर्मनाक किया जा रहा था, शर्मसार किया जा While रहा था। the teachers of the law and the Pharisees were about their business, they did not think about the woman. और जब वह शास्त्री और वह जो फरीसी थे वो अपने काम को कर रहे थे, उन्होंने उस स्त्री के बारे में नहीं सोचा। Jesus thought about the woman. यीशु ने उस स्त्री के बारे में सोचा, Because he cares about our shame. क्योंकि वह हमारी उस शर्म के बारे में He took चिंता करता our है। shame on the cross. उसने हमारी उस शर्म को अपनी क्रूस पर लिया है, He took every shame on the cross. और उसने उस सब शर्म को उस क्रूस पर लिया है। In Hebrews chapter 12, it is said that Jesus, despising of the shame that was upon him, he endured the cross. Chapter 12, verse 2. और इब्रानियों 12 उसके 2 में वह इस प्रकार से कहता है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, Who set before him, joy that is set before him, endured the cross, despising the shame. जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करी। Jesus came to take away shame of people.
और यीशु आया कि वो उन लोगों की उस शर्म को, उस लज्जा को अपने ऊपर ले सके। Have you ever experienced shame? क्या आपने कभी उस शर्म को महसूस किया है? Or have you ever got humiliated publicly? या आप बहुत से लोगों के सामने सामाजिक रूप से आपकी बेइज्जती हुई हो? As a church, we are going through a series called Back to Basics. एक कलीसिया के रूप में हम एक श्रृंखला से होकर गुजर रहे हैं जिसका नाम है अपने मूल विश्वास पर वापस आना। Foundations of Christian faith. बुनियाद एक विश्वासी, एक मसीह विश्वास की। It is very important to strengthen our faith, our foundations. और यह बहुत ज़रूरी है कि हम अपने विश्वास को, अपनी बुनियाद को और मजबूत करें। There are so many things that we draw from this story. और यहाँ पर बहुत सी चीज़ें हैं जो हम इस कहानी से ले सकते हैं। But the title that I have entitled this sermon is called Repentance Leads to Redemption. परंतु जो शीर्षक आज की सुबह मैंने अपने प्रचार को दिया है वह यह है कि माफ़ी मांगना हमारी छुटकारे की ओर हमें ले जाता है। Repentance actually पश्चाताप. पश्चाताप। Pashchatap. Repentance leads to redemption. पश्चाताप हमें छुटकारे की ओर ले जाता है। And as a believer, one of the very basic foundation of our life is repentance. और एक विश्वासी होने के नाते एक जो हमारे मसीह जीवन की एक जो बुनियाद है, बहुत ही मूल चीज़ है, वह है यह पश्चाताप। We will understand repentance in this acronym called ART, A-R-T. और हम जो है इस पश्चाताप को एक एक्रोनिम यानी 3 शब्दों के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे जो है आर्ट, A-R और T। You like arts? आप में से कितने लोगों को कला पसंद You है? like making things? क्या आपको कोई चीज बनाना पसंद है? Drawing things? ड्राइंग करना If you पसंद है? ever think of art, you think of repentance. और अब आज के बाद कभी भी अगर आप आर्ट करने की सोचेंगे, कला करने की सोचेंगे तो आप उस पश्चाताप के बारे में सोचेंगे। A stands for acknowledging. और जो A अंग्रेजी शब्द A है वह स्टैंड करता है एक्नॉलेजमेंट यानी कि उस बात को मानने के लिए। R stands for receiving grace and mercy. और R जो अंग्रेजी शब्द है वह इस बात को दर्शाता है कि परमेश्वर के उस अनुग्रह को अपनाना, उस कृपा को अपनाना। T stands for turning away from sin. और जो T है वह इस बात को दर्शाता है कि आप अपने पाप से मुड़ रहे हैं। God is doing something big in this present time. परमेश्वर कुछ बड़ी चीजों को करता है इस मौजूद समय में। God is busy building His church परमेश्वर अपनी कलीसिया को बनाने में व्यस्त है through authentic Christianity. और वह उस मूल उस सिद्ध मसीहत को फिर से खड़ा कर रहा है। There have been around fake Christianity. और ये बहुत समय से इस संसार में एक जो गलत, एक जो झूठी विश्वासी कलीसिया है वह उठ Just रही है। because there is so much fake notes, you notice never government stops note those notes. और आप देखें कि क्योंकि वहाँ पर बहुत सी फर्जी करेंसी है, बहुत सी फर्जी नोट है, पर आप देखेंगे कि कभी भी सरकार उन्हें रोकती नहीं है। They continue to produce the truth. पर वह फिर भी नोट छापने में लगे रहते हैं। गलत के होने के कारण वो सही को कभी रोकते नहीं। We are living in the times where Jesus is continuing to build the truth in the church, in Christians. और हम उस समय में जी रहे हैं जहाँ पर यीशु जो है वह अपने लोगों में उस विश्वास को फिर से नया करके बनाता है। There are only two approaches. वहाँ पर सिर्फ 2 तरीके हैं One जिससे हम जा approach सकते हैं। is religiously. और एक है धार्मिकता की ओर से हम जा सकते हैं। We can approach Jesus religiously और like हम- the Pharisees and the teachers. हम यीशु के पास उस पूर्ण धार्मिकता से जा सकते हैं उन शास्त्रियों और उन फरीसियों के रूप में। Or like the woman who experienced forgiveness and grace, who understood what is it to have repentance.
और या फिर हम उस स्त्री के स्वरूप जा सकते हैं जिसने समझा उस माफी को, उस कृपा को, और जिसने अपनाया उस क्षमा को, one who joined in love relationship with Jesus. और एक वह जिसने उस प्रेम के रिश्ते में यीशु के साथ जोड़ी। Now, this woman stands unnamed और यह जो स्त्री है इसका नाम नहीं दिया गया है, just because there is a reference when Mary Magdalene comes with the alabaster jar. There is a reference in Luke, in book of Luke, that the Pharisees discuss saying, if he was a prophet, if he knew what kind of woman she is, people try to attribute that Mary Magdalene is this woman. और सिर्फ क्योंकि वहाँ पर एक बारी बाइबल में लिखा गया है कहीं पे कि जब मरियम मगदलीनी अपने उस गंधक के पात्र को गंधक नहीं सॉरी संगमरमर के पात्र को लेकर आती है, तो वहाँ पर उसका नाम इस्तेमाल किया गया है, इसलिए लोग जो हैं वो कहते हैं कि यह स्त्री भी वही है, तो लोग उसको जोड़ने की एक कोशिश करते हैं, But it is not clear. परंतु यह सिद्ध नहीं है। This woman is unnamed. यह जो स्त्री है इसका कोई नाम है नहीं। She experienced a relationship aspect. उस स्त्री ने एक रिश्ते को वहां पर महसूस किया। And it is possible that believers and churches can take the path of religiosity. और यह बहुत संभव है कि जितने भी विश्वासी हैं, जितने भी कलीसियाएं हैं, वह इस धर्म के मार्ग को चुन सकती है, But miss on to what God is doing, what God is, doing something new. परंतु इस बात पर वह ध्यान, इस बात से वह चूक सकती है कि क्या परमेश्वर कर रहा है उस समय में। Do you know that at this phase in North India, और आपको पता है कि इस समय में नॉर्थ इंडिया में I represent ADC church in North India. और मैं एडीसी कलीसिया को नॉर्थ इंडिया में अभी दर्शाता हूँ। A week ago, last Sunday, we prayed for a pastor in South India who was martyred. और पिछले रविवार हमने एक पासवान के लिए प्रार्थना की थी जो साउथ इंडिया में थे, जिनकी हत्या की गई थी In Telangana. तेलंगाना में। But a week later, परंतु एक हफ्ते बाद a pastor in Punjab, और एक पास्टर पंजाब में, unfortunately, बहुत ही दुखद रूप से when I heard about it, मैंने जब इस बारे में सुना, so much compassion, बहुत प्रेम, was sentenced to, life imprisonment. और यह जो पासवान है यह उम्र कैद की सजा इन्हें सुनाई गई In Punjab. पंजाब में। His name is Prophet Bajinder Singh. और वह अपने आप को बजिंदर सिंह के नाम से बुलाते हैं। And every news kept saying, Yesu, Yesu, pastor. और हर एक जो न्यूज़ है वह इसी बात को कह रही थी, यीशु यीशु वाले जो पासवान है। I felt so much shame. मुझे अपने आप में बहुत शर्म महसूस I हुई। felt compassion for the pastor. मुझे उस पास्टर के लिए बुरा लगा, But I felt shame that we as Christians and the name of Jesus is now stand ashamed. और कि हम एक मसीह समाज के रूप में और यीशु का जो नाम है वह आज ऐसे शर्मनाक इस रूप से खड़ा किया गया है। He was convicted after proper investigation. और उनके ऊपर यह आरोप लगाए गए थे और उसके ऊपर बहुत छानबीन हुई For multiple charges for rape and destroying the evidences and things like that. और जो अलग अलग उनके ऊपर चार्जेस धाराएं लगाई गई थी कि उन्होंने किसी महिला के साथ दुष्कर्म करने के और सारे जो सबूत हैं उनको मिटाने के। 42-year-old pastor and has wife and 2 kids. और एक 42 वर्षीय पास्टर जिसके पास एक बीवी और 2 बच्चे हैं Has unfortunately put the name of Jesus to shame. और बहुत दुख के साथ उन्होंने यीशु के उस नाम के ऊपर इस शर्मनाक बात को लेकर आया है। How do we handle such things? कैसे हम इन बातों को संभालें?
we are tagged, oh, these are the Yesu people. और हम पर हमला किया जाता है ऐसी बातों से कि अरे ये तो वो यीशु यीशु वाले लोग हैं। What happens in such things that if one thing comes out like this, generally accepted, everyone is like this. और ऐसा इसलिए होता है कि अगर ऐसी कोई एक बात बाहर आ जाए तो उसको बहुत ही सामाजिक रूप से कहा जाता है कि सब ही ऐसे हैं। Unfortunately, because there is so much of fake, does it means God will stop doing the original? और बहुत दुख के साथ, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा नकलीपन है या फर्जीपन है, In fact- परमेश्वर उस सही चीज को करने से रुकेगा नहीं। I remember, I think Aditya would remember, from the beginning I have been preaching a message saying God is no longer going to raise a pastor, he's going to raise a church. और मैं शुरुआत से इसी बात को कह रहा हूँ कि परमेश्वर अब किसी पासबान को खड़ा नहीं करेगा, परमेश्वर अब एक कलीसिया को He खड़ा is going करेगा to raise a church which is authentic, और वह एक कलीसिया को खड़ा करेगा Which जो is वह सिद्ध कलीसिया है, rooted in the love of Jesus, जिसकी जड़ें परमेश्वर के प्रेम में हैं, who is in love relationship with Jesus. जो परमेश्वर के साथ, यीशु के साथ एक प्रेम के रिश्ते में जुड़ी है। Church, this is foundational. कलीसिया यह एक बहुत ही बुनियादी बात है। There is an enemy वहां पर एक शत्रु है who comes to steal, kill and destroy. जो आता है चोरी करने, हत्या करने और नष्ट करने के लिए। This scripture, Ezekiel chapter 36, verse 22, is the answer to the churches in North India. और यह जो अध्याय है यजिकेल उसका 22वां अध्याय, यजिकेल 36 22 उसका 36वां अध्याय 22वां वचन. यजिकेल उसका 36वां अध्याय और 22वां वचन। Just because there can be so much of fake Christianity, we are not supposed to, they are not our model. Our model is Jesus Christ. और क्योंकि वहां पर बहुत ही एक गलत मसीहत है, ऐसे लोग हमारे मॉडल्स नहीं हैं। Look at हमारा this. जो ध्यान होना चाहिए वो यीशु मसीह पर होना चाहिए। Ezekiel 36:22, it says, "Therefore say to the house of Israel, thus says the Lord your God, it is not for your sake, O house of Israel, that I'm about to act, but for the sake of my holy name, which you have profaned among the nations to which you came, and I will vindicate the holiness of my great name, which has been profaned among the nations, and which you have profaned among them, and the nations will know that I am the Lord, declares the God Almighty, declares the Lord God, when through you I will vindicate my holiness before their eyes." Ezekiel chapter 36 verse 22. यजिकेल उसका 36 उसका 22वां से अध्याय 23 तक. 22-23 और इस प्रकार से कहती है कि इस कारण तू इज़राइल के घराने से कह है कि परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हे इज़राइल के घराने, मैं इसको तुम्हारे निमित्त नहीं परंतु अपने पवित्र नाम के निमित्त करता हूँ, जिसे तुमने उन तथ्यों में उपद्रवी ठहराया जहाँ तुम गए थे, और मैं अपने बड़े नाम को पवित्र ठहराऊंगा जो जातियों में अपवित्र ठहराया गया है, जिसे तुमने उनके बीच अपवित्र किया। और जब मैं उनकी दृष्टि में तुम्हारे बीच पवित्र ठहरूंगा, तब वे जातियां जान लेंगी कि मैं यहोवा हूँ, परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। The same people will see the glory of the name of Jesus and say, He is true God. और वही लोग देखेंगे उस सच्चे परमेश्वर की महिमा को और कहेंगे कि हाँ, Because यह सच्चा परमेश्वर है। God will Himself vindicate His holy name. Hallelujah. क्योंकि परमेश्वर स्वयं से अपने उस पवित्र नाम को दर्शाएगा। हालेलुया। Hallelujah is so precious, so meaningful, so deep. और जो यह शब्द हालेलुया है, यह बहुत बहुमूल्य है, बहुत गहराई है इस शब्द The में। name of Jesus, Yeshu, is so powerful, so holy.
और यीशु मसीह का जो नाम है यीशु, वह इतना सामर्थ्यशाली है, इतना खूबसूरत है। Because of such things, mind you, this kind of exposition is not happened first time in Punjab. It has happened in America first. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा जो खुलासा है वो पंजाब में पहली बार नहीं हो रहा है, ऐसा अमेरिका में पहले हो चुका है। In fact, systematically, there emerges a spirit behind working actively behind churches, like a fake Christians, fake preachers, fake pastors. They emerge in such a way, systematically ministering in such a way with systematic passages to do exorcism or to preach prosperity. और वहाँ पर इस प्रकार से एक पूरा सिस्टम बन चुका था एक समय में कि लोग जो प्रचारक हैं वो कुछ गिने चुने प्रचार को करेंगे, कुछ गिने चुने आयतों को पढ़ेंगे, जिसके द्वारा वह प्रॉस्पेरिटी यानी सिर्फ उन्नति का प्रचार करेंगे और सिर्फ दुष्ट आत्माएं भगाने का प्रचार करेंगे। So does Jesus not involved in healing? Yes, he is involved. तो क्या यीशु चंगाई में चंगाई के कार्य को नहीं करता था? हाँ, वो चंगाई के कार्य को करता था। Now, because of that gift is being abused publicly like that, we give up on faith. We don't want to pursue healing. और क्योंकि अब फिर वह जो तोहफा है उसका दुरुपयोग हो रहा है सामाजिक रूप से, तो हम इस बात को कहते हैं कि नहीं, अब हमें इस चंगाई के पीछे नहीं जाना है। Or because we see deliverance done in such a way. और क्योंकि अब हम देखते हैं कि जो छुटकारा है वह इस प्रकार से मिल रहा है। Is Jesus not involved in delivering people? क्या यीशु इस छुटकारे में नहीं है? He is. हाँ, वह है। Now, because is done in such a way that has no scriptural basis. और परंतु क्योंकि अब वह इस प्रकार से किया जा रहा है जिसका वचन के ऊपर कोई भी उसकी बुनियाद नहीं रखी गई है। It's a show. It's a systematically done. और यह एक शो के हिसाब से है, या सिर्फ दिखाए जाने के लिए एक दिखायापन है। It is so systematic that the voices are in such a way, the sound is produced such a way, the setup is produced such a way. और यह इतने सही रूप से किया जा रहा है, इसकी योजना ऐसी बनाई जा रही है कि साउंड भी वैसा है, वहाँ पे वो पंडाल ऐसे लगाए जाते हैं that people get caught up in this deception. कि लोग इस धोखे में फंस जाएं। I was in another faith, मैं एक दूसरे विश्वास में था, and once I came under a spirit of deception. As a whole family, we came under a spirit of deception. और हम एक पूरे परिवार के रूप से इस भरमाने वाली आत्मा के नीचे थे। And I learned something, that deception is real. और मैंने इस बात को समझा कि यह जो भरमाने की आत्मा होती है यह बहुत बहुत सच्ची आत्मा है। In that phase, we saw this person like the God man. और उस समय में हमारे जीवन के हमने इस एक व्यक्ति को एक भगवान स्वरूप देखा अपने And जीवन में। basic logic went outside of the window, and we were willing to give anything to this person. और जो मूल जो सोचने की क्षमता होती है वह सब कुछ हमारे मनों को छोड़कर जा चुकी थी, And और हम हर बात करने के लिए तैयार He थे। promised us, if you do certain things, you will have peace in your family. और उन्होंने हमसे वादा किया कि अगर तुम ये कुछ चीजों को कर लोगे तुम्हारे परिवार में शांति आ जाएगी। And after that, he took all the money and he disappeared for a week. और फिर उसके बाद उन्होंने सारा पैसा लिया और एक हफ्ते के लिए गायब हो गए। And then all of a sudden, we were like awakened. और फिर एकदम से हम लोगों की आंखें खुली। So what happened? क्या हुआ वहां How पर? did we got ourselves into these things? कि कैसे हमने अपने आप को इन सब बातों में फंसा लिया। I realized deception is real. और मैंने इस बात को जाना कि यह जो धोखा है यह बहुत सच है। But to the true Christians, Jesus promised, I give you my Holy Spirit. He will be your counselor, leader, your guide. और उन सच्चे विश्वासियों के लिए परमेश्वर यीशु ने इस बात को कहा है कि मैं तुम्हें अपनी आत्मा देते जाता हूं जो तुम्हें अगुवाई करेगी और जो तुम्हें सलाह देगी। Every one of you has a Holy Spirit. You can sense whether this man or this ministry or this church
has the presence of God or not? और हर एक व्यक्ति के अंदर वह पवित्र आत्मा है, और आप इस बात को जांच सकते हैं, समझ सकते हैं, भांप सकते हैं कि क्या इस कलीसिया में, क्या इस मनुष्य में, क्या इस जगह पर परमेश्वर की आत्मा है कि God नहीं। has done that way so that He will keep the remnant till the end. और परमेश्वर ने इस प्रकार से किया है ताकि वह उन लोगों को अपने अनंत काल तक रख सके, अपने चुने हुए को अपने साथ रख सके। Jesus will continue to build His church. यीशु अपनी कलीसिया को बनाता रहेगा। His primary message was message against sin. और उनका जो मूल उपदेश था वह उपदेश था पाप के विरुद्ध You know, उपदेश। there is one old lady in the church in Mumbai, and then we met her in Bangalore as well. एक बहुत बूढ़ी स्त्री हैं मुंबई की कलीसिया में, और हमें उनको बैंगलोर में भी मिले। Probably for the years that I've been alive, she has been Christian probably. और जितने वर्ष से मैं जीवित हूँ वो शायद उससे उतने ही वर्ष से वो मसीह हैं। She was in the church in Mumbai and she used to say, "When will I call you my pastor?" और एक कलीसिया में थी वो मुंबई में, और मुझे कहती थी कि मैं तुम्हें कब अपना पास्टर कह के पुकारूंगी। After my sermon, she would stand there and encourage me. और मेरे सरमन के बाद वो वहाँ पर खड़े होकर मुझे उत्साहित किया करेंगी। Last when I saw her in Bangalore, और she said this to me. और आखिरी बार जब मैंने उन्हें बैंगलोर में देखा, उन्होंने मुझसे इस बात को कहा। She said, "Preach against sin." और उन्होंने मुझसे कहा कि पाप के विरुद्ध प्रचार करो। You know, when we begin to preach sin, people don't want to hear that message. और जब हम पाप के विरुद्ध प्रचार करने लगते हैं, लोग उस प्रचार को सुनना नहीं चाहते हैं। If you preach prosperity in our part, in our region of India, people want to follow that message. और अगर आप बहुत आयत के प्रचार को करेंगे, पैसों के लिए प्रचार को करेंगे, तो हाँ, हम जिस जगह रहते हैं हिंदुस्तान में, यहाँ पर लोग आपके पीछे चलना चाहेंगे। Never thought I will become a pastor or leader. मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक पास्टर या एक अगवाह बनूंगा। When the Lord called me और परंतु जब परमेश्वर ने मुझे बुलाया to serve Him, उसकी सेवा करने के लिए, there was a song which I kept singing. और एक गाना था जिसको मैं गाता रहता था। That song records, I'm going to be a history maker in this land and I'm going to be speaker of truth to all mankind. और वह इस बात को कहता था कि मैं एक इतिहास रचने वाला बनने वाला हूँ इस जगह पर, और मैं एक हिस्ट्री मेकर एंड प्रीचर ऑफ ट्रूथ, और मैं एक सत्य का प्रचार करने वाला बनने वाला हूँ इस जगह पर। When we speak truth, truth is not sugar coated but as it is. और जब हम सच्चाई को बोलते हैं तो सच्चाई जो है वह उसके ऊपर कोई चीनी की कोई परत नहीं होती है, वह जैसी कड़वी होती है वैसी आपके आगे रखी जाती है। The truth is Jesus loves you. और जो सच्चाई है वह यह है कि यीशु आपसे प्रेम करता है। You know, His love you have not comprehended fully. और उसका जो प्रेम है उसको आपने अभी शायद पूर्ण रूप से समझा नहीं है। A woman caught in adultery, a pastor caught in adultery. और एक यहाँ पर स्त्री हमने देखा जो व्यभिचार में पकड़ी गई, और एक पासबान हमने देखा जो व्यभिचार में पकड़ा गया। Do you know Jesus' heart is the same heart with compassion and with love. और यीशु का जो हृदय है वह वही हृदय है जो उस प्रेम से भरा है। We were singing about this love this morning. और आज की सुबह हम उस प्रेम के बारे में गीत गा रहे थे, And I was just wondering, standing behind, और मैं सिर्फ इस बात को सोच रहा था पीछे खड़े होकर, has any one of us has a clue of that depthness of that love? कि क्या हम में से किसी को भी कोई अनुमान है उस गहराई उस प्रेम की। While the Pharisees and the teachers shouted, "Justice, justice, justice," जब वह शास्त्री और उन फरीसियों ने चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि न्याय होना चाहिए, न्याय होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। in fact, if we would be on the crowd, that's what we would be, with full of pride, only looking at others' shortcoming. और अगर हम भी उस भीड़ में होते तो शायद हम भी वही होते जो सिर्फ अपने घमंड को देख रहे होते और दूसरे में क्या खोट है, दूसरे में क्या बुराई है, इस बात को देख रहे होते। Pride and judgmentalism will only look at others' eyes. और जो
यह घमंड है और जो यह न्याय करने की आत्मा है, यह सिर्फ दूसरों की आंख में जो लट्ठा है उसको देख सकती है। Jesus said, You keep on looking at the speck. Look at your eyes. You have a plank. और यीशु इस बात को कहता है कि तुम दूसरे की आंख का तिनका देख लेते हो, परंतु अपनी आंख में जो लट्ठा है उसको पहचान भी नहीं पाते हो। Pride has that shade of shade, by the way. और जो यह घमंड है उसका यह एक और स्वरूप है, इसका एक और रूप है। The 50 shades of pride, perhaps more than 50. और जो 50 स्वरूप है या उससे भी ज्यादा शायद हो सकते Some हैं। of them you don't even know that you are prideful and you और are walking in like इनमें that. से कहीं तो शायद आप समझ भी या जानते भी नहीं होंगे कि हाँ ऐसा भी है। But ones who have received love and forgiveness and compassion of Jesus can no longer be prideful. और एक व्यक्ति जिसने यीशु के प्रेम को अपनाया है, उसके प्रेम को चखा है, वह फिर कभी घमंड में नहीं हो सकता है। And so you can imagine, have you ever been disturbed in your teaching or in your preaching? Jesus was interrupted like this, brought that woman, those guys. और अगर आप कभी अपने सिखाए जाने की प्रक्रिया में, अपने प्रचार के बीच में अगर कभी रोके गए हैं या आपको परेशानी की होगी, तो यीशु भी वहां पर प्रचार कर रहा था, सिखा रहा था, और उस बीच में लोग उन्हें लेकर आते हैं। Before I give you art, acknowledging, receiving grace and mercy, and turning away from sin, और इससे पहले मैं आपको आर्ट के बारे में बताऊं, जो है एक्नॉलेजिंग और रिसीविंग ग्रेस एंड मर्सी। just want to highlight few very important aspect in the story. और मैं उससे पहले कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें इस घटना के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, Which is very fundamental for Christian faith. जो बहुत एक बुनियादी है एक मसीह विश्वास के लिए। Number one, Jesus' acceptance. पहली बात, यीशु जो है वह अपनाने वाला यीशु है। We as a church, we as Christians are should be so full of love of Jesus, must accept one another as they are. और हम एक कलीसिया के रूप में, हम यीशु के पीछे चलने वाले लोगों के रूप में प्रेम से इतने भरे होने चाहिए कि हम हर किसी को अपना सकें जैसे वो Church हैं। is going to be open for those people, the sinners, the ugliest, the hopeless people. और जो कलीसिया है वह हमेशा खुली रहेगी उन पापियों के लिए, उन बहुत ही घिनौने लोगों के लिए जो जिन्होंने बहुत गहरे पाप किए हों। Religiosity is not portrayed externally. God looks at our heart. और जो यह धार्मिकता है यह बाहरी रूप से नहीं दिखाई जाती है, परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है। So when they bring this woman, तो जब वह इस स्त्री को लेकर आते हैं, while the teachers of the law are busy asking a question, setting up a trap, और जब वह नियम को सिखाने वाले लोग उसके लिए एक जाल बिछा रहे होते हैं, you must study the scripture. आप उस वचन को जरूर पढ़ें। When you study deep, you will get engrossed and you will get interested in going into so many things. तो जब आप उसको गहराई से पढ़ेंगे, आप उसमें और गहरे रूप से जाएंगे और आप And sorry, No, you go ahead. then you will see the treasures that are in there. और फिर आप उसकी उस गहराई में छुपे हुए खजानों को देख Then you पाएंगे, will see the things that has not even been said. और तब आप देख पाएंगे उन चीजों को जो वहां पर कही नहीं गई है परंतु है। If the woman was brought, where was the man? और अगर कि वह स्त्री जो लेके आई गई थी वहां पर वो पुरुष कहाँ था? Write down Deuteronomy 22:22. आप लिखें ड्यूटरोनॉमी। According to the law of Moses, both should be stoned to death. व्यवस्था विवरण 22वां अध्याय 22वां वचन. व्यवस्था विवरण 22 का 22, Which means this is a clear trap. और जिसका अर्थ है कि यह एक फंसाने वाली एक जाल थी उन लोगों A की। woman had serious weakness. और एक जो स्त्री है उसे बहुत एक गंभीर बीमारी थी। Perhaps she was in an extramarital affair. शायद हाँ वह एक दूसरे रिश्ते में थी शादी के बाद, It was a weakness. और यह एक उसकी कमजोरी थी। But weakness was never worked on. परंतु उस कमजोरी पे कभी काम नहीं किया गया था। Jesus is
going to choose weak people and make them strong. और यीशु जो है उन कमजोर लोगों को चुनने वाला है और उन्हें सामर्थ्यशाली बनाने वाला है। A sin continuously being repeated makes your conscience weak. और एक पाप जो बार बार किया जा रहा हो वह आपके विवेक को बहुत कमजोर कर देता है। Once conscience keeps on getting weak, what will happen? Conscience will die. और जब एक बारी आपका विवेक बार 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 टूटता जाएगा, एक दिन क्या होगा, वह मर जाएगा। That's what happens with continuous habitual sin. और ऐसा होता है जब हम बार बार एक आदत की तरह उस पाप को करते हैं। And if you pick up the news, the rapist, the murderer, their conscience is so dead that they were willing to go all out to do anything. और अगर आप न्यूज़ को देखें, आप ऐसी चीज़ों को उठा के पढ़ें, तो जो यह रेपिस्ट लोग होते हैं, जो वह हत्यारे होते हैं, उनका जो विवेक होता है वह इतना मर चुका होता है कि वह कुछ भी करने को तैयार होते हैं। Jesus came to make us alive. और यीशु आया कि हमें फिर से Spiritually जीवित कर सके make us awaken. और आत्मिक रूप से हमें फिर से जागृत कर सके, Consciously make us awaken. हमारे विवेक को फिर से जागृत कर सके And started working on a lifestyle of repentance. और एक जीवन शैली पे काम करने लगा जो माफी का जीवन शैली है। Where was the man? कहाँ था वह पुरुष? That's a good question. यह एक बहुत अच्छा सवाल है। Number two, that we can miss on. दूसरी बात जो हम शायद चूक सकते हैं, Because while everyone is interested in finding what Jesus would answer these Pharisees, कि सब लोगों का ध्यान इस बात में था कि क्या जवाब यीशु देता है इन फरीसियों को। Jesus busy doing something. यीशु कुछ और करने में व्यस्त था। And that is what I want you to keep your attention to is Jesus bends twice. और मैं आपका ध्यान इस बात पर लेके आना चाहता हूँ कि यीशु 2 बारी वहां पर झुका। That bending portrays humility. और वह झुकना जो है वह Because उसकी नम्रता को दर्शाता है। No Jewish man will ever bend before a woman. और क्योंकि कोई भी यहूदी पुरुष कभी एक स्त्री के आगे नहीं झुकेगा। It would be, women was counted very derogated. और उस समय में स्त्रियों को बहुत ही निचला माना जाता था। We've come long way. हम एक बहुत समाज में बहुत समय से ऊपर आ गए हैं। Just 30 years ago you go in India and perhaps even now women are not counted as human. और 30 वर्ष पहले हिंदुस्तान में या कई जगहों पर आज भी जो स्त्रियां होती हैं उनको मनुष्य तक नहीं माना जाता। You go back to Jesus' time, how would women be treated? और आप यीशु के समय में जाएं, कैसे स्त्रियों के साथ व्यवहार किया जाता था। All the women in the house, जितने भी स्त्रियां हैं हमारे इस बीच में अभी, the loving Jesus, our Savior, हमारा प्रेमी पिता परमेश्वर bends down, आपके लिए झुकता है, humble himself. वो अपने आप को नम्र करता है। Isn't our Savior our true hero? क्या हमारा जो बचाने वाला है वह हमारा सच्चा हीरो नहीं? If I were you, a girl, I would fall in love with Jesus. अगर मैं एक लड़की होता तो मैं तो जरूर प्यार करता यीशु से। I don't want a guy to fall in love with. मुझे कोई लड़के की जरूरत नहीं He प्यार is करने के लिए। superb. He is an amazing hero. और यीशु जो है एक अमेजिंग हीरो है, He's a gentleman. वह एक जेंटलमैन है। He bends down before an adulterous woman. और वह झुकता है एक व्यभिचारी स्त्री के Two आगे। times reflect the true humanity of Jesus, true humility of Jesus, done twice. One when he came in the manger, and second when he died on the cross. और 2 बारी जो दर्शाता है वह उस सच्ची नम्रता को दर्शाता है, क्योंकि पहले जब वह एक उस चरनी में आया और दूसरा जब वह उस क्रूस पर लटकाया गया। Such level of humility is not found in any religion, in any gurus, in any superhero. और इस
प्रकार की जो नम्रता है ना किसी धर्म में देखी गई है, ना किसी गुरु में देखी गई है और ना ही किसी और व्यक्ति में देखी गई है। I mean, this passage we can go perhaps whole afternoon. और इस अध्याय के साथ हम पूरे दिन शायद जा सकते हैं। I have so much I can give you. और मैं इतना कुछ है मेरे पास जो मैं आपको देना So चाहता many हूँ। things amazes me when I think and read. और इतनी चीजें मुझे अचंभित करती हैं जब मैं सोचता हूँ और पढ़ता हूँ। That's our Jesus, यह हमारा यीशु है who has compassion for a woman. जिसके अंदर प्रेम है एक स्त्री के लिए। The word passion is from Greek word pathos, which means something you feel deep pain. और पैशन जो शब्द है वह पेथोस करके एक ग्रीक शब्द है, वहां से आता है और जिसका अर्थ होता है कि एक ऐसा दर्द जो आप महसूस कर सकते हैं। When you think of compassion, you come in someone's deep pain. और जब आप इस शब्द कंपैशन को देखते हैं तो यह इस बात का अर्थ यह है कि आप किसी के गहरे दर्द में उनके साथ आते हैं। Jesus had compassion. यीशु के अंदर वह प्रेम था। While we would also be on the side of Pharisees and looking at how ugly this woman is, how, she cannot even do this. Look at her. We would have been so judgmentalism. और शायद हम भी उन फरीसियों के साथ होते कि कितनी एक घृणा वाली बात है स्त्री के लिए, क्या इसने किया है, या तो कुछ कार्य सही से कर भी नहीं सकती। Jesus had mercy and grace. यीशु के पास He had कृपा और अनुग्रह था। compassion for this girl. उसके अंदर वह प्रेम, वह गहरा प्रेम था उस लड़की के लिए। When he had compassion, he did not overlook or dismiss sin. He extended forgiveness and grace, leading her to redemption. और जब उसके अंदर यह प्रेम था, उसने उस पाप को नजरअंदाज नहीं किया, उसने उस पाप को माफ किया, अपने अनुग्रह को उस पे दिया। This trap was real set by these Pharisees. और यह जो एक जाल था वह बिछाया गया था इन फरीसियों के द्वारा उसके लिए। They didn't bring the man. उन्होंने उस पुरुष को नहीं लेकर They आए had two witnesses so that law of Moses is correct. और उनके पास दो जो थे देखने वाले लोग थे ताकि जो मूसा का जो लॉ है वह सही हो। Law of Moses, which is practiced in Islam, in UAE, in Middle East, if a woman get raped, there has to be two eyewitness of seeing the very act. और जो यूएई में आज भी उस नियम को माना जाता है, और अगर वहां पे ऐसा है कि अगर कोई स्त्री के साथ दुष्कर्म हो रहा है, वहां पर दो लोग ऐसे होने चाहिए जिन्होंने ऐसा देखा हो। If there is no two witness, a girl can shout, scream, go to any court of law, court will not listen. और अगर ऐसा नहीं है तो एक लड़की कुछ भी कर ले, चाहे कितना भी चिल्ला ले, चाहे कहीं भी जाए, उस बात को माना नहीं जाएगा। So it's a trap. तो यह एक ट्रैप है। If Jesus says that will let us stone her, और यीशु कहता है कि उस पर पथराव करे, he will miss on the Roman law. वह जो है उन रोमियों के नियमों को नहीं मानेगा। Because Roman law, you can practice any law in your religion, but you cannot sentence anyone to death. और क्योंकि रोमियो का जो नियम है वह इस बात को कहता था कि तुम अपने धर्म की कोई भी नियम को मानो, परंतु तुम किसी को मृत्यु का दंड नहीं दे सकते। That's why Jesus was convicted through Roman law. इसीलिए यीशु जो है वह रोमियो के नियम के द्वारा उस पर दोष लगाया गया। But if he says don't stone her, they will say he's a blasphemist, not teaching the law of Moses. और परंतु अगर वह कहता कि नहीं इसको पथराव नहीं करना है, तो यह फरीसी कहते कि ये तो जो है एक झूठ का प्रचार कर रहा है, क्योंकि ये मूसा के नियम को Jesus नहीं bent मानता। down and he wrote. और यीशु उस समय पर झुका और उसने लिखना शुरू किया। Have you wondered what did he write? क्या आपको पता है क्या उसने वहां पर लिखा, Do क्या you want सोचा to है? know what he write? क्या आप जानना चाहते हैं क्या उसने लिखा By उस the way, समय? scripture doesn't say so. I also don't know what he write. क्योंकि वचन नहीं कहता है तो मुझे भी नहीं पता उसने क्या कहा है वहां पर। But there are two possible arguments. परंतु वहां पर दो बातें हो सकती हैं। Number one, he may have written the law of Moses. पहली जो बात हो सकती है, शायद उसने मूसा का वह नियम लिखा वहां Because पर। Pharisees and teachers, they brought a measure that they will also be judged with the same measure. और क्योंकि
वह जो फरीसी और वह जो सिखाने वाले थे वह उस माप को लेकर आए जिससे उनका भी न्याय होगा कल के This दिन। view is from Saint Augustine the Hippo in 4th century, who has a significant impact on today's Christianity. और यह जो नज़रिया है वह सेंट ऑगस्टिन का है जो पोप थे चौथी पीढ़ी में, और यह उनका जिनका एक बहुत प्रभाव है आज के मसीहत पे। You know, the law came through Moses, but grace and truth came from. जीसस, Isn't that amazing? जो नियम कानून है वह मूसा के द्वारा आए, परंतु अनुग्रह Perhaps यीशु के द्वारा। he wrote the law. तो शायद उसने वहां पर उस नियम को लिखा हो That gave the hint to the Pharisees. जिसने उन फरीसियों को यह हिंट दी। That's why they started living one by one. इसीलिए वह एक एक करके जाने लगे I have not met that law. कि मैं यह नियम नहीं कह रहा हूँ, And they started living. और वह जाने लगे। Number 2, दूसरा, Jeremiah chapter 17 verse 13, यर्मिया उसका 17 और उसकी 13वीं आयत, which says, those who forsake God, their names will be written on the earth. और वह इस प्रकार से कहता है कि जितने तुझे छोड़ देते हैं वे सब लज्जित होंगे, जो तुझसे भटक जाते हैं उनके नाम भूमि ही पर लिखे जाएंगे। Those who forsake, they will be put to shame. जितने तुझे छोड़ देते हैं वह लज्जित किए जाएंगे। They continued in that shame path. और वह अपने उसी लज्जा के रास्ते पर चलते रहे। So some people think that Jesus began to write their names who are the sinners in this crowd. और कई लोग इस बात को कहते हैं कि यीशु उन सारे पापियों का नाम लिखने लग गया था उस भूमि पर वहां। By the way, the first view, remember, finger of God writing the law, reflecting the finger of God wrote 10 commandments on the tablet of stone. और वही आप इस बात को भी याद रखें कि वह यीशु की जो उंगली थी एक नियम को वहां पर लिख रही थी, और वही उंगली जो थी परमेश्वर की उंगली जिसने 10 आज्ञाओं को लिखा गया था। The second one, he is writing so that Jeremiah 17:13. और दूसरा वहां पर कि वह लिख रहा है जो यर्मिया 17:13 में लिखा गया है Those who forsake Jesus, their names will be written. कि वह जो तेरे नाम से भटक जाते हैं उनका नाम भूमि पर लिखा जाएगा। These three things has so much of significance. यह 3 चीजों पे कितनी एक गहराई और कितनी महत्वपूर्ण बातें The हैं। last one that I believe, Jesus may have written as being a prophet who knows the very soul of each one of life. और तीसरी जो बात है जो इस पे मैं विश्वास करता हूँ वह यह है कि यीशु वह प्रचारक व भविष्यवक्ता होने के Jesus नाते writing their name and putting what they have committed. और यीशु वहां पर उनका नाम लिख रहा था और उन्होंने क्या किया वह You इस know, बात को लिख रहा Jesus था। knows all things in your heart. आप जानते हैं कि यीशु सब बातों को जानता है आपके He हृदय doesn't में। want to break confidentiality. वह आपकी उस गुप्त बातों को सबके सामने लेकर नहीं आना चाहता, But if you forsake him, पर अगर आप उससे भटक जाते हैं, उससे भूल जाते if you हैं, disown him, अगर आप उसे अपने जीवन से निकाल देते हैं, because he is light, the nature of light will reveal the works of darkness. और क्योंकि वह ज्योति है तो ज्योति का तो कार्य ही होता है कि वह अंधकार को मिटा सके, दिखा सके। And that's what it happened with this woman as well. और ऐसा ही इस स्त्री के साथ भी हुआ। Church, before we go so far, remember Jesus is light and we will give account to Jesus. Every dark things will come out one day anyway. और इससे पहले हम बहुत आगे जाएं, याद रखें यीशु वह ज्योति है और हर एक अंधकार की बात एक ना एक दिन बाहर आई These जाएगी। are basics of you walking and following with Jesus. और यह बहुत मूल बातें हैं आपके लिए जो इस पे आप चले यीशु के It पीछे। should scare those who are doing something wrong. यह उनको डराना चाहिए जो किसी गलत बात को करते हैं। Those who are loving Jesus, following him, they will not have to be scared. परंतु वह लोग जो यीशु से प्रेम करते हैं उसके पीछे चलते हैं उन्हें इस बात से डरने की जरूरत नहीं है। Repentance starts with acknowledgement. जो पश्चाताप है वह मानने के द्वारा शुरू होता है। Acknowledging Jesus in all your ways.
यीशु को मानना आपके सारे रस्तों में। How many of you were blessed with Bishop's message last Sunday? हम में से कितने लोग बिशप के प्रचार It से was a पिछले संडे timely आशीषित word. हुए? एक बहुत समय में आया हुआ वचन था। Plan A, Plan B, and Plan C. प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी। He quoted Proverbs 3. उन्होंने नीति वचन 3 को वहाँ Trust पर in the बोला Lord and don't lean in your own understanding. कि परमेश्वर पर भरोसा रखो और अपनी समझ का सहारा ना लेना। I continue the scripture. Acknowledge Him in all ways. और मैं उसके आगे जा रहा हूँ और कहता हूँ कि सब बातों में उसे ही स्मरण करना। Repentance is about acknowledging from your deepest heart, Lord, I am sorry, I have made this blunder. और जो पश्चाताप है वह आपके हृदय की गहराई से इस बात को मानना है कि हाँ प्रभु, मैं स्मरण करता हूँ, मैं मानता हूँ कि मैंने इस पाप को किया है। Even if I have spoken to someone wrongly, the Spirit of the Lord reveals my heart and I acknowledge. I say, hey, I'm so sorry I spoke to you wrongly. और अगर मैंने किसी से गलत रूप से बात भी की हो, तो जो परमेश्वर का आत्मा है वो मेरे हृदय में इस बात को दर्शाता है और मैं कहता हूँ कि मैं Being बहुत माफी in the चाहता हूँ कि मैंने place ऐसी of बात की आपसे। sorry is humility. अगर आप उस माफी, उस सॉरी की जगह पर हैं तो वह आपकी नम्रता को दर्शाता है। Tressa and I has one value. We will say quickly sorry to each other. और ट्रेसा और मेरे पास एक जो मूल है वह यह है कि हम एक दूसरे को बहुत जल्द ही सॉरी Even बोलते हैं, if it is not my mistake. अगर यह मेरी गलती हो चाहे ना हो। Acknowledgement is very important. यह मानना बहुत So जरूरी है। much so, in our culture, we say, don't say thank you. It's not official. It's like, we are friends, yaar. Stop saying thank you. और हमारी कल्चर में हम ऐसा कहते हैं कि अरे तुम थैंक यू क्यों बोलते हो, हम तो दोस्त हैं, ऐसा जरूरी Thank थोड़ी है। you is an acknowledgement. थैंक यू कहना भी एक मानना Thank है। you is a place of humility. और जो थैंक यू कहना है वह भी एक आपकी In नम्रता fact, को दर्शाता है। thank you is a place of gratitude. और थैंक यू जो है वह आपका धन्यवाद कहना, Gratitude in your attitude. आपका धन्यवादी हृदय को दर्शाता है Acknowledge Jesus in all ways. कि आप यीशु को स्मरण करें अपने सारे रास्तों में। Have you ever thought one thing? क्या आपने कभी इस बात को सोचा है? Jesus said, narrow is the way that leads to life. यीशु कहता है सकरा है वह मार्ग जो जीवन की ओर ले जाता है, Wide is the way that leads to destruction. और बहुत चौड़ा है वह मार्ग जो नष्ट की I have ओर ले this जाता है। question. मेरे पास यह सवाल था Where are you? कि आप कहाँ हैं? Where are you standing? आप कहाँ खड़े? Lot of people say, I am here. बहुत से लोग कहेंगे मैं तो यहीं पे खड़ा हूँ। I am here in between. Should I choose this way or this way? और लोग कहेंगे कि मैं तो यहाँ बीच में खड़ा हूँ, अब मुझे समझ नहीं आ रहा है इस रास्ते से जाऊँ कि इस रास्ते से जाऊँ। Some says, no, actually, I am on narrow way on Sunday, but somewhere in the middle, I come on the bigger ways. और कई लोग कहेंगे कि हाँ संडे को तो मैं उस सकरे मार्ग पे खड़ा हूँ, परंतु हफ्ते में बीच में कभी कभार मैं उस चौड़े मार्ग में आ जाता हूँ। That's the way we have viewed Matthew chapter 7. और यही एक नजरिया है जिससे हमने मत्ती 7 अध्याय को This is समझा the है। narrow way आप कहेंगे कि यह तो पतला रास्ता है and this is the wide way. और यह चौड़ा रास्ता है। Where are you? कहाँ हैं आप? Some they say, I'm still here. कई लोग कहते हैं मैं अभी भी यहीं पर हूँ, But that's not the right understanding. परंतु यह एक सही समझ नहीं है। This is where you will understand true repentance. और यहीं पर आप उस सच्चे पश्चाताप को समझेंगे। When Jesus said this, narrow is the way, जब यीशु ने कहा सकरा है वह मार्ग, and then right opposite is the wide way. और उसके विरुद्ध, उसके ठीक पीछे जो है वह You चौड़ा can मार्ग है। only on one way. आप सिर्फ एक रास्ते पर हो सकते हैं Hallelujah. Jesus Hallelujah. is the way. और यीशु ही So, वह रास्ता है। You either walk towards Jesus तो या तो आप यीशु की ओर चलकर जाएंगे and you are back towards the destruction. और आपकी जो पीठ है वह उस नष्टता की ओर है। So we were all on this way तो हम सब इस रास्ते पर थे, with our shame, with our guilt, with our all sorts of wrongdoing, adultery, witchcraft, idolatry, so many things. हम इस रास्ते पर थे अपनी शर्म के साथ, अपने व्यभिचार के साथ, अपने जादू टोने के साथ, अपने The सारे गलत gospel कार्यों के came साथ, to us, the good news. परंतु यीशु फिर भी उस सुसमाचार के साथ हमारे पास आया That though being adulterous, कि हाँ Jesus said, हाँ तुम व्यभिचारनी हो, यीशु ने फिर भी कहा I love you.
कि मैं तुमसे प्रेम करता I do not condemn हूँ, you. मैं तुम पर दोष नहीं लगाता। Hallelujah. हालेलुया। How many of you think that that's a good news? और हम में से कितने लोग सोचते हैं कि यह एक अच्छी खबर है? Isn't it a good news? क्या यह एक अच्छी खबर नहीं? That I am not taking you to the hell. कि मैं तुम्हें उस नरक में नहीं लेकर I जाता हूँ, grant you salvation. मैं तुम्हें वह It's उद्धार the को देता best हूँ। news. यह सबसे उत्तम खबर है That you will do anything for that news. कि आप इस खबर के लिए कुछ भी करना चाहेंगे। And so we heard Jesus. तो हमने यीशु को सुना, We responded to him. हम उसको जवाब देते हैं And we all made a U-turn. और हम सब ने एक मोड़ लिया अपने आप को। Repentance is that U-turn. और जो आपने अपने आप को मोड़ा, यह वह पश्चाताप The है। word in Greek is metanoia. और जो ग्रीक शब्द है वह मेटानोइया है। Meta is Facebook using for metaverse, which means another world. और मेटा का जो अर्थ है, जो फेसबुक यूज कर रहा है, उसका मतलब एक अलग संसार। You change from one world to another world. और इसका अर्थ है कि आप एक संसार से दूसरे संसार पे आ The रहे हैं। word noia means mind. और जो नोइया है उसका अर्थ है मन। You used to think like that, now change the way you think. और आप इस प्रकार से सोचा करते थे, अब आपने अपनी सोच को बदल लिया है। Now where are you? अब आप कहाँ हैं? All of you who have repented. आप में से जितने लोगों ने पश्चाताप किया है, Which path are you? किस मार्ग पर आप हैं? Actually, you are on a narrow way. आप अब उस सकरे मार्ग में हैं। But this is true परंतु यह सच्चाई है that the past looks so pleasing. कि जो आपका भूतकाल है वह बहुत ही शायद आनंद में दिख रहा And हो, you do not turn away in a day. और आप सिर्फ एक दिन में पलट नहीं जाते हैं। Are you getting me? क्या आप मेरे को समझ पा That रहे the हैं? past is so pleasing जब आपका जो पुराना समय है वह इतना आनंद में that है the enemy wants you to make a U-turn again. कि आपका जो शत्रु है वह चाहता है कि आप फिर से एक बारी पीछे मुड़ That जाएं। never happens in a day. और यह सिर्फ एक दिन में नहीं होता But है, time and time again, he sends you the pleasing of the past. और परंतु समय दर समय वह आपको आपकी पुरानी बातों को याद दिलाएगा और उनको वापस आपके जीवन That में लेके you would आएगा make a U-turn. कि आप फिर से मुड़ जाएं। Every wrongdoing has a thought behind. Change the way you think from today. और हर एक गलत कार्य के पीछे एक ख्याल है। आज आप अपने ख्यालों If को you बदलें। think that grace is about God will accept me no matter how I live, और अगर आप सोचते हैं अनुग्रह इस बारे में कि परमेश्वर मुझे अपनाएगा चाहे मैं जैसे भी रहूं, you misunderstood. आप गलत समझ रहे हैं। That's what we read towards the end. Jesus' forgiveness was with instruction. और यीशु की जो माफी थी वह कुछ नियमों के साथ थी। Sin no more. वह था और पाप ना करना। Will that not be the same instruction for us? क्या यही हमारे लिए एक नियम नहीं होगा? Are you listening this morning? क्या आप सुन रहे हैं आज की सुबह? Are you blessed this morning? क्या आप आशीषित हैं आज की सुबह? Acknowledge God, acknowledge and make a U-turn. आप इस बात को माने और एक यू टर्न लें Receive God's grace. और परमेश्वर के अनुग्रह को अपनाएं। We anyway gonna deal with grace in this back to basic properly. और हम अनुग्रह के बारे में भी सुनने जाएंगे बहुत अच्छे रूप Because से, that's the biggest area to talk about. क्योंकि वह एक बहुत जरूरी, महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी बात है Grace करने के लिए। meant to transform you and I. आज जो है वह आपको और मुझको बदलने के लिए है। When we live a lifestyle of repentance, जब हम एक जीवन जीते हैं We- पश्चाताप का, we work on our weakness. हम अपनी उन कमजोरियों पर कार्य करते A हैं। pastor who never worked on his weakness, अगर एक पासबान कभी अपनी उन कमजोरियों पर काम नहीं करे he let the enemy a better of him. और वह उस शत्रु को अपना उत्तम भाग देने के लिए We तैयार as होगा। men, we got to work on our weakness. हम पुरुषों के रूप में हमें अपनी कमजोरियों पर कार्य करना है। Bible says sin starts like a desire. और बाइबल कहती है कि जो पाप है वह एक इच्छा स्वरूप शुरू होता है, Just like the desire will make you pregnant. और वही जो इच्छा है वह आपको गर्भवती And करेगी, then sin gives birth और फिर वह जो पाप है वह जन्म देगा to death. मृत्यु को। Are you listening this morning? क्या आप सुन रहे हैं आज की सुबह? Jesus gave a way for us from repentance leading to redemption. यीशु ने हमें एक रास्ता, एक मार्ग दिया है हमारे पश्चाताप से। Repentance is not one time event but lifestyle.
जो यह पश्चाताप है वह एक दिन का कार्य नहीं परंतु एक जीवन Repentance शैली is है। not just saying sorry to God, but changing the way you think. और जो यह पश्चाताप है या सिर्फ परमेश्वर को सॉरी कहना नहीं परंतु This is- बदलना है आपके चाल चलन This को। is why I say the known sin we got to work on. Unknowingly, I am still a sinner. और इसलिए मैं इस बात को कहता हूँ कि जिन पापों को मैं जानता हूँ मुझे उन पर कार्य करना है और जिनको मैं नहीं जानता हूँ वह भी Discipleship is accountability. और जो चेला बनाने की प्रक्रिया है वह है इस बारे में कि मैं अपना लेखा देता Accountability हूँ is welcomed. और जो ये लेखा देना है यह अपनाया जाना चाहिए। I want to be accountable to someone. मैं किसी के सामने अपने आप So का लेखा दे I पा रहा don't हूँ fall into my weaknesses. कि मैं अपने उन कमजोरियों में फिर ना गिरूं। I need people whom I will be sharing my things. और मुझे उन लोगों की जरूरत है जिनसे मैं अपनी चीजों को बांट सकता हूँ। But accountability is never demanded. जो यह लेखा लेना है या कभी भी मांगा नहीं जाता है। Discipleship is never demanded. Jesus did not say, I will teach you, I will be your rabbi. और यीशु ने कभी इस बात को नहीं कहा कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा, मैं तुम्हारा शिक्षक The बनूंगा। students follow teacher. जो सीखने वाले थे वह उसके पीछे चले। Are you blessed this morning? क्या आप सीख How much आशीषित more हैं? we need accountability. कितनी ज्यादा हमें और इसकी जरूरत I है। had no problem to sit before a great, man of God and say, look, I have a problem with alcohol. I have problem with pornography. I have problem with these. और मेरे अंदर मुझे कोई परेशानी नहीं थी किसी परमेश्वर के जन के आगे बैठकर इस बात को कहने की कि देखो मुझे शराब की दिक्कत है, मुझे गलत चित्र देखने की दिक्कत है, मुझे और बातों से दिक्कत I है, need help. मुझे मदद की जरूरत I है, need prayer. मुझे प्रार्थना की जरूरत है। And the right people understood me and they prayed for me. और सही लोगों ने मुझे समझा और मेरे लिए प्रार्थना की। Let's come before Him. आए हम परमेश्वर के आगे आए। Repentance is an art acknowledging, receiving Jesus' grace, and turning away from sin. जो पश्चाताप है वह एक कला है और आर्ट है जिसमें आप अपने पाप को मानते हैं, आप अपने पाप से मुड़ते हैं और आप अपने पाप को This morning, if the Word of God is being ministered to you, Word of God is speaking to you, you can begin your new journey. और आज की सुबह परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करता है, वह आपके लिए यहाँ पर आया है और एक नई शुरुआत आपके जीवन में करता है। Unrepentant sins, you can bring it before Jesus. Say, Lord, I'm sorry, I changed the way I think. और आप अपने पापों के लिए परमेश्वर को कह सकते हैं, प्रभु मैं माफ़ी चाहता हूँ और क्या आप मेरे जीवन में आ सकते हैं। I need your grace. मुझे आपके अनुग्रह की ज़रूरत है, I need your mercy. मुझे आपकी कृपा की ज़रूरत है। Thank you, Jesus, धन्यवाद हो यीशु that you carry same compassion for each one of us. कि आप वही करुणा हम सब के लिए लेकर चलते हैं, For a very adulterous people हम जैसे व्यभिचारी लोगों के लिए and for very self-proclaimed, self-righteous people. और वो लोग जिन्होंने खुद को बहुत ही धर्मी माना है। Forgive us, Lord, हमें क्षमा करे प्रभु, that while we look at others' eyes with the speck, but there is so much of blank in our own eyes. कि जब हम दूसरों के आंखों का तिनका देखते हैं, हमारी आंखों में एक बड़ा लट्ठा है। Lord Jesus, forgive me. यीशु मसीह मुझे माफ़ करें। You can say, Lord, forgive me. आप कह सकते हैं परमेश्वर आप हमें क्षमा करें। I am full of pride at times, मैं कई बार घमंड से भर जाती हूँ judgmentalism, और मेरे अंदर न्याय की भावना होती है self-righteousness. और मेरे अंदर स्वयं का धार्मिकता होती है I am nothing without you, Jesus. और मैं आपके बिना कुछ नहीं हूँ परमेश्वर, I need your grace. और मुझे आपके अनुग्रह की ज़रूरत I है, need your mercy. मुझे आपकी करुणा की ज़रूरत है।